Welcome to everyone. Good morning. Today I will discuss about vascular tissue system of angiospermic plants. This is a fourth semester type of the syllabus. Previous lecture I was discuss about tissue and type of the tissue. टिश्यू क्या होता है और टाइप ऑफ द टिश्यू के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। टिश्यू क्या होता है और उसके टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए थे। जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, दो ही टाइप होता है और इसमें कई मेंबर में डिवाइड होता है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसके टाइप क्या हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वह एक वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं। Okay guys, let us now goes to vascular tissue system. The central column of axis of stem and roots is called stele, which is made of number of vascular bundle which constitute or what this is known as vascular tissue system. This is known as vascular tissue system. The central column of axis of stem root is called a stele, which is made of number of vascular bundle के द्वारा बना होता है। This is known as vascular tissue system. The vascular tissue system are occur in a the stem and root of angiospermic plants. Stem and root of angiospermic plants. The vascular bundle have a
जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। द जाइलम में भी starch or indarch. The starch are also known as centripetal, 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 the starch content is also known as centripetal, that is protoxylem, protoxylem, protoxylem are developed protoxylem are developed toward periphery, periphery, that is protoxylem are developed toward periphery. These are occurs in the roots, in a root. Okay guys, the indarch are also known as centrifugal, centrifugal, that is protoxylem are developed toward center. This is a occur. This is a occur This is a occur in a stem of angiospermic plants. This is a occur in a stem of angiospermic plants. ओके गाइस, ये आपका हो गया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या होता है द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम? द सेंट्रल कॉलम ऑफ एक्सिस ऑफ स्टेम एंड रूट इज कॉल्ड स्टील। इसको हम क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। which is made up of number of vascular bundle, which is made up of number of vascular bundle. This is known as
vascular tissue system. This is known as vascular tissue system. Okay, this is known as vascular tissue system. The vascular tissue system occurs in a stem root of angiospermic plants. In a stem root of angiospermic plant. Stem root of angiospermic plant. The vascular bundle have a xylem and phloem. Vascular bundle are consist of xylem and phloem. The xylem may be exarch or endarch. Exarch or endarch. And divided into protoxylem, metaxylem. प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में डिवाइडेड होता है. Exarch are also known as centripetal condition. That is centripetal. That is protoxylem are developed toward periphery. Protoxylem are developed toward periphery. Protoxylem are developed toward periphery. These are occur in the root. Exarch condition are occur in the root of angiospermic plant. एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रूट में यह पाया जाता है. Endarch are also known as centrifugal. That is protoxylem are developed toward center. Protoxylem are developed toward center. Protoxylem are developed toward center. This is a occur in a stem of angiospermic plant. This is a occur in a stem of angiospermic plants. ओके गाइज, इस प्रकार वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ. इसमें क्या होता है, वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट कैसे होता है इन ए रूट और स्टेम में, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. इसमें दो कंडीशन पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाता है. और जाइलम और फ्लोएम के बारे में इस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है. जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है. दिस इज ए टाइप ऑफ द परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का यह टाइप है. और इसके बाद जब हम उसके बारे में पढ़ लेंगे तो यह चीज़ें आपको आसान लगने लगेगा. अब वो चीज़ें तो उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप, जाइलम टाइप, यह चीज़ें मैंने पढ़ा हूँ. लेकिन कैसे कंडीशन में, किस अवस्था में, कैसे किस पोजीशन में जाइलम पाया जाता है इन्हें वैस्कुलर बंडल में, और फ्लोएम, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है. ओके, तो जाइलम क्या होता है, यही प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में डिवाइड होता है. लेकिन एक्सार्च और इंडार्च दो कंडीशन इसमें पाया जाता है. एक्सार्च और इंडार्च दो कंडीशन पाया जाता है. ओके,
इक्सार्च आर आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल। आपको मैं बता दिया हूँ सेंट्रीपिटल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या मेडिकल के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उसमें यह क्वेश्चन आता है। इक्सार्च कंडीशन किसे पता है, इंडार्च कंडीशन क्या होता है। मेडिकल में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन फिक्स आता है। एनाटॉमी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एनाटॉमी, रूट स्टेम के बारे में ये सब चीज़ें जो है। प्रोटोजाइलम दैट इज सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंट्रीपिटल, ठीक, सेंट्रीपिटल। सेंटर से पेरीफेरी, पेरीफेरी की ओर जो है डेवलपमेंट होता है क्या, प्रोटोजाइलम, ओके। और यह रूट में पाया जाता है यह कंडीशन। कहाँ, सेंटर से पेरीफेरी की ओर जब प्रोटोजाइलम का डेवलपमेंट होता है तो उस कंडीशन को हम सेंट्रीपिटल और इक्सार्च कंडीशन कहते हैं। इक्सार्च बोले तो सेंट्रीपिटल। इंडार्च आर आल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल, ओके। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, दैट इज प्रोटोजाइलम आर डेवलप टुवर्ड सेंटर, ओके गाइस। अब सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, प्रोटोजाइलम आर डेवलप टुवर्ड सेंटर, सेंटर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी से सेंटर की ओर जब डेवलपमेंट होता है तो उसको हम इंडार्च कंडीशन या सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन कहते हैं, ओके। सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन और इंडार्च कंडीशन आपका इसी होगा, पेरीफेरी टू सेंटर की ओर जब डेवलपमेंट हो प्रोटोजाइलम का तो उसको हम कहेंगे इंडार्च कंडीशन। और यह कहाँ पाया जाता है, दिस कंडीशन आर अकर इन ए स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, स्टेम ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह पाया जाता है। स्टेम ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। दिस इज ए टाइप ऑफ, दिस इज ए इंफॉर्मेशन ऑफ द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। एक बार फिर से इसको आप क्लियर करिए, थोड़ा सा देखिए ये क्या होता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द सेंट्रल कॉलम ऑफ द एक्सिस ऑफ स्टेम रूट इज कॉल्ड स्टील विच इज मेड ऑफ द नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, यह वैस्कुलर बंडल से बना होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। अब यह वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम आर अकर इन द रूट और स्टेम में ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल आर हैव ए जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम में भी प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में डिवाइडेड होता है। जाइलम में भी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम डिवाइडेड होता है। जाइलम में भी इक्सार्च और इंडार्च कंडीशन पाया जाता है, इक्सार्च और इंडार्च कंडीशन पाया जाता है। इक्सार्च आर आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल दैट इज प्रोटोजाइलम आर डेवलप टुवर्ड पेरीफेरी। इक्सार्च का मतलब होता है सेंट्रीपिटल कंडीशन होता है और प्रोटोजाइलम से पेरीफेरी की ओर, मतलब सेंटर से पेरीफेरी की ओर डेवलपमेंट होगा तो उसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं और यह रूट में पाया जाता है। इक्सार्च सेंट्रीपिटल याद कर लीजिएगा, माइंड में बैठाइए। इक्सार्च और सेंट्रीपिटल और इंडार्च और सेंट्रीफ्यूगल होता है, यह स्टेम में पाया जाता है। इस प्रकार यह आपका हो गया। अब इसके बाद टाइप ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के टाइप्स हो गया के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, the vascular tissue system, type of the vascular tissue system, mainly the vascular bundle are divided into three types. The vascular bundle
are divided into three type. First, radial. Second, conjoint. Third, concentric. Radial, conjoint, concentric. The vascular bundle or vascular bundle tissue system are divided three types: radial, conjoint और जो है concentric. ओके गाइज, अब इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियल. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियल क्या होता है? वेन, आपको मालूम है कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है वेस्कुलर बंडल में. वेन, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज ROR strand. Patches ROR strands are present at different radii. Such type of the vascular bundle is known as radial vascular bundle. Okay. The radial vascular bundle are occur in a root of angiospermic plant. रूट में पाया जाता है रेडियल वैस्कुलर बंडल. वेन जाइलम, वेन क्या है? वेन जाइलम एंड फ्लोएम आर अकर इन ए पैचेज. वेन जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज ROR स्ट्रैंड आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई में पाया जाता है. ऐसे वैस्कुलर बंडल, सच टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इज नोन एज रेडियल वैस्कुलर बंडल. ओके गाइज, वेन जाइलम और फ्लोएम पैचेज ROR स्ट्रैंड आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई में पाया जाता है. सच टाइप ऑफ द वैस्कुलर बंडल इज नोन एज रेडियल वैस्कुलर बंडल. ओके, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो डिफरेंट पैचेज में पाए जाते हैं. ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं? रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं. और रेडियल वैस्कुलर बंडल आर अकर इन ए रूट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. जैसे मान लीजिए कि यह कोई वैस्कुलर बंडल है,
ये आपका जाइलम और ये क्या है, फ्लोएम है। देखिए गाइस, ये क्या है, इसमें किसे पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। वेस्कुलर रेडियल वेस्कुलर बंडल का ये स्ट्रक्चर है। रेडियल वेस्कुलर बंडल का यह स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, यह रूट में पाया जाता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यह जाइलम है, यह फ्लोएम है, यह अलग अलग रेडियाई में पाया जाता है, अलग अलग पैचेज में पाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हम क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके, ऐसे रूट को हम क्या कहेंगे, ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अब रेडियल वेस्कुलर बंडल यह रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, कंजॉइंट। वेन जाइलम and phloem, xylem and phloem are present on the same radius, on the same radius, this type of the vascular bundle are known as conjoint vascular bundle. conjoint vascular bundle, conjoint vascular bundle क्या होता है, conjoint vascular bundle when xylem and phloem are present on the same or same radius, एक ही रेडियस में पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल इज नोन एज कंजॉइंट। कंजॉइंट दिस इज अकर इन द stem, the conjoint vascular bundle are two type. The conjoint vascular bundle are two type. conjoint vascular bundle का अगर हम फिगर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये आपका क्या हो गया, कंजॉइंट हो गया। कंजॉइंट यह फ्लोएम हो गया और यह क्या हो गया, जाइलम हो गया। ओके गाइज, यह कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल ब्रैकेट में स्टेम, ये स्टेम पाया जाता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियाई में पाए। देखिए एक रेडियस है और उसमें क्या था कि अलग अलग पैचेज या अलग अलग रेडियस पाया जाता था। देखिए यह फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, दोनों एक ही साइड में पाया जाता है, एक ही पैचेज या एक ही रेडियाई में पाया जाता है। तो ऐसे टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल को हम कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहते हैं। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट सेम रेडियस,
एक ही रेडियस में पाया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल इज नोन एज कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल टू टाइप्स होता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल आर टू टाइप्स। फर्स्ट है कंजॉइंट कोलैटरल ओपन, conjoint collateral close। okay guys, conjoint collateral open, conjoint collateral close, conjoint collateral open, conjoint collateral closed। दो टाइप्स ऑफ द वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। कंजॉइंट कोलैटरल ओपन का मतलब क्या हो गया, यह आपका जैसे फिगर देखिए यहाँ पर, यह क्या है, कंजॉइंट कोलैटरल ओपन हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या पाया जाए, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाए, कैम्बियम। यह हो गया जाइलम, यह कैम्बियम, और यह क्या है, फ्लोएम। ठीक, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब कैम्बियम पाया जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजॉइंट कोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, ऐसे देख लीजिए, एक बस ओनली एक रेखा पाया जाएगा ऐसे, ये कैम्बियम नहीं पाया जाता है, ओनली जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। तो ऐसे टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल को क्या कहेंगे, कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज, CCC ट्रिपल C, कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, कंजॉइंट कोलैटरल ओपन। ओके गाइज, तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलैटरल ओपन, ओपन मतलब बीच में कैम्बियम पाया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंजॉइंट कोलैटरल ओपन। कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज उसको कहते हैं जिसमें कैम्बियम क्या हो, एब्सेंट हो। कैम्बियम एब्सेंट होगा तो इसको हम कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड कहते हैं। यह सभी चीज़ें आपका किस में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, लीफ में भी पाया जाता है, कुछ लीफ ऐसे होते हैं उसमें भी पाया जाता है। इस प्रकार आपका कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। थर्ड क्या है, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। वेन इसमें क्या होता है, कंसेंट्रिक में क्या होता है कि जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम या फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम, इसके द्वारा सराउंडेड, तो उसको हम कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। वेन जाइलम surrounds phloem completely or over phloem surround xylem completely, this type of the vascular bundle, this type of the vascular bundle is known as concentric vascular bundle, concentric। ओके गाइज, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल क्या होता है, when xylem surround phloem completely, phloem surround xylem, this type of the vascular bundle is known as concentric vascular bundle। concentric vascular bundle, xylem surrounded by phloem, phloem surrounded by xylem। तो ऐसे टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल को हम कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और यह जो है आपका कितने टाइप, टू टाइप होता है। दिस इज ए टू टाइप्स, फर्स्ट एम्फी क्राइवल
आर हाइड्रोसेंट्रिक हाइड्रोसेंट्रिक हाइड्रोम से ही हाइड्रोसेंट्रिक पाया जाता है। हाइड्रोसेंट्रिक मतलब जाइलम सेंटर में पाया जाता है। हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। ओके, हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। सेकेंड है आपका एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। एम्फीक्राइबल और हाइड्रोसेंट्रिक। हाइड्रो मतलब हाइड्रोम मतलब जाइलम। ओके गाइस, अब इसमें क्या होता है, एम्फीक्राइबल या टू टाइप होता है। कंसेंट्रिक वैस्कुलर टू टाइप है, एम्फीक्राइबल और हाइड्रोसेंट्रिक, एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं एम्फीक्राइबल के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि द जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। ये देखिए, मान लीजिए कोई ये है पीथ है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, यह जाइलम हो गया, ठीक। तो ये जाइलम आपका हो गया। अब ये जाइलम सराउंडेड होता है, ये फ्लोएम हो गया, पूरी आल्फ्लोएम। इसको क्या कहेंगे, फ्लोएम। इसको क्या कहेंगे, जाइलम। ठीक है, द जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। द जाइलम क्या होगा, सराउंडेड बाय, कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम इज नोन एज एम्फीक्राइबल और हाइड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। हाइड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल क्या होता है, यह हाइड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल क्या होता है, द जाइलम कंप्लीटली सराउंडेड बाय द फ्लोएम, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहेंगे या एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल कहेंगे। एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, ये देखिए इसमें क्या होता है, यह आपका क्या है, फ्लोएम। ओके गाइज, यह आपका क्या हो जाएगा, जाइलम। यह आपका जाइलम हो गया और यह क्या हो गया, फ्लोएम हो गया। यह आपका सेकेंड वाला पार्ट है। कौन सा है, सेकेंड है। यह आपका कौन सा है, फर्स्ट वाला। ओके गाइज, दिस इज एपीसी एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल। दिस इज एम्फीवेसल, ये भी वेसल। The xylem are surrounded by phloem is known as एम्फीक्राइबल और हाइड्रोसेंट्रिक हाइड्रोम। एम्फीक्राइबल को हाइड्रोसेंट्रिक कहते हैं और एम्फीवेसल को लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टो मतलब फ्लोएम होता ही है, लेप्टो मतलब क्या होता है, फ्लोएम, और हाइड्रो मतलब आपका क्या हो जाएगा, जाइलम। इसमें द फ्लोएम सराउंडेड बाय, यह देखिए, द फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम इज नोन एज एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ओके गाइज, यह हो गया आपका, क्या हो गया, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल क्या होता है, फर्स्ट है आपका वेस्कुलर बंडल रेडियल वेस्कुलर बंडल, ये आपका रूट में पाया जाता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल आपका जो है स्टेम पाया जाता है। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल आपका स्टेम में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें टू टाइप होता है, एम्फीक्राइबल होता है और एम्फीवेसल होता है। द जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम इज नोन एज एम्फीक्राइबल, द फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम इज नोन एज एम्फीवेसल्स। ओके गाइज, इस प्रकार आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम खत्म हो गया। यह आपका एंजियोस्पर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप फोर्थ सेमेस्टर का यह टॉपिक है, आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, लर्न करिए, याद करिए। ये आपका एक जो है कि ये फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, गुड बाय, यू टेक केयर, यू आर सेफ।
This is a vascular tissue system. This is a vascular tissue system and types. Okay, goodbye.